الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. مجھ پر بھی تیرا ہو کرم، تیرے کرم پہ مجھ کو یقین ہے. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس فانی زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں اپنی عظیم نعمت سے نوازا ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کی پوری قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کے مہینے میں بندہ عام طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے
کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھوں۔ صبح سحری کر لی، اس کے بعد سارا دن روزے کی حالت میں رہتا ہے، تو بندہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، آنکھ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے کان کی بھی حفاظت کرتا ہے، حتی الامکان گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کی کیفیت یہ ہو جائے کہ جیسے رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے، گناہوں سے بچا کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بھی نیک عمل کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جیسے اس کی میں مثال آپ سے کر دیتا ہوں، جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کا حق مارنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ معاف فرمائے اگر بندہ زنا کر لیتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی اپنے والدین کی نافرمانی یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ رمضان میں ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جو ہم سے کبیرہ گناہ ہوئے اس سے توبہ کرنی ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ جب عزم کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمت عطا فرما دیں گے، استقامت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ گناہ نیک عمل کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ توبہ ایسی صفت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ شرک بھی اگر کیا ہو تو اس پر بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں اگر بندہ معافی نہ مانگے اللہ سے، توبہ نہ کرے، تو ایک اللہ کی طرف سے عذاب تو اس کو ضرور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ بھی اس انسان پر ہوگا۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے سے کلام بھی نہیں کریں گے، اور اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ موبائل بند کر لیں بھائی۔ میں نے گزشتہ جمعے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ میں اسی موضوع کو تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اندر بھی تو پہلے بھی جیسے اپنے گناہوں کو بچانا ہے، رمضان میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، تو ان گناہوں کی کیوں نہ نشاندہی کر دی جائے کہ جن کی سزا اتنی سخت ہے کہ عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ کی نظر شفقت بھی اس بندے کی طرف نہیں ہوگی، اللہ اس بندے سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ ان گناہوں کی طرف ذرا ہم توجہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سے خدا نخواستہ وہ گناہ نہ ہو
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے کلام نہ فرمائے۔ بات سمجھ رہے؟ آج بندہ اپنے والدین سے بات کرتا ہے، والدین اپنے بیٹے سے پیار سے بات کرتے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے پیار سے بات کرتا ہے، دوست اپنے دوست سے بات کرتا ہے، یہاں تک بندے کی کیفیت ہوتی ہے کہ بس آپ سے بات ہو گئی مجھے سکون مل گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ سے بات ہو گئی مجھے سکون مل گیا، آپ کو میں نے دیکھ لیا میرے دل میں سکون پیدا ہو گیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، دیہاتی تھے، دور سے آتے تھے اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد میں تشریف لاتے، جمعہ پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے، حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے پوچھا کہ آپ بڑی دور سے آتے ہیں، 8 دن کے بعد آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں مفہوم یہ ہے میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، میرے دکھ درد تکالیف دور ہو جاتے ہیں، تو مجھے کبھی بات کرنے کی ضرورت ہی پیش ہے۔ ایسے ہوتا ہے بندے کے ساتھ۔ گنبد خضرا پہ جب بندے کی نگاہ پڑتی ہے نا، تو یہی دل میں خیال آتا ہے کہ میں کسی اپنے کے پاس آ گیا، میں اپنے کے پاس آ گیا ہوں۔ جب بندہ گنبد خضرا کے سامنے پہنچ جاتا ہے، ایک ہے مواجہ شریف پہ جانا، وہاں تو ہچکی بن جاتی ہے بندے کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما ہے، جہاں سے حضور علیہ السلام کو سلام پیش کیا جاتا ہے، وہاں اللہ کرے اللہ اس قوم کو باادب بنا دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں۔ اگر وہاں جا کے بے ادبی کرتا ہے تو آج کا یہ انسان بے ادبی کرتا ہے۔ یہ کمال ہے، آپ دو جہاں کے آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مواجہ شریف اسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر کھڑے ہو کے بندہ پیارے آقا کی ذات پہ سلام پیش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہاں سامنے ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ جاتا ہے، مواجہ شریف پہ جاتا ہے، جا کے سلام پیش کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سلام سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں اور اس بندے کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو اگر یہ حالت ہے، مسئلہ اگر یہ ہے، تو آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ وہاں با ادب ہو کر جانا چاہیے یا بے ادب ہو کر؟ کمال ہے یار، 2-4 بندے 10 بندے با ادب ہاتھ باندھ کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ با ادب ہو کر، آنکھوں میں آنسو لے کر، پیارے آقا کے مواجہ پہ کھڑے ہو کر اپنے آقا کو سلام پیش کرتا ہے۔ چند لوگ ایسے دیکھے ہم نے، اکثر و بیشتر ایسے ہیں۔ ویڈیو بن رہی ہے کیا؟ ویڈیو بن رہی ہے یا جناب کسی کے ساتھ پیچھے ویڈیو کال میں لائی ہوئی ہے،
मवाजा शरीफ पर खड़े हैं, आप प्यारे नबी को सलाम पेश कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी चल रही है और उस बंदे को कह रहे कि ले भाई मैं मवाजा शरीफ से खड़ा, तू भी सलाम पेश कर ले। वो अल्लाह के बंदे तू खुद तो सलाम पेश कर, तुझे वहां जाकर भी पिछलों की फिक्र पड़ी हुई है। और अगला जो वीडियो कॉल पे है उसकी हालत यह है कि उसने अभी मुंह भी नहीं धोया, उसके बाल भी बिखरे हुए हैं और उसने बुनियान पहनी हुई है और उसे कह रहा है कि तू भी आका को सलाम पेश कर। ये कौन सा अदब है? अदब ये नहीं है। अदब ये है कि दो आंखें झुकी हुई हो, हाथ बंधे हुए हो, आंखों में आंसू जारी हो। बल्कि पीर नसीरुद्दीन नसीर ने तो ये कहा कि शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। यादें सताती हैं, अल्लाह सबको ले जाए। नहीं सामने जाया जाता, आंख नहीं उठाई जाती। जब ऐसा बाअदब होकर उम्मती जाता है, नबी रहमत की जब निगाह शफकत पड़ जाती है, फिर उसे दुनिया की किसी नेमत की जरूरत नहीं है, उसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं। हाय कुर्बान जाए अल्लाह की अजमत और शराफत पे। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने इस बंदे को देखें, अल्लाह करे अल्लाह मुस्कुरा के देखें, अल्लाह मुस्कुरा के देखें। ये वो बंदा है जिस बंदे ने इबादुर रहमान की सिफात को अपने अंदर अपनाया था और मेरी मर्जी की गुजार के आया था, रब चाही गुजार के आया था, मन चाही गुजार के नहीं आया था। हाय जब अल्लाह देखेंगे अपने इस बंदे को, हाँ हाँ मेरे बंदे तू मुझे राजी करके आया है, तू मेरी रजा वाले काम करके आया है, मैं तुझे देख के मुस्कुरा रहा हूं। मुझे आप ये बताएं, जब अल्लाह मुस्कुराएंगे, अल्लाह जब देखेंगे अपने उस बंदे से रहमत और शफकत के साथ जब बात करेंगे, तो क्या ये बंदा अपने अल्लाह से राजी नहीं होगा? बोलो भाइयों, क्या बंदे के दिल में सुकून पैदा नहीं होगा? हाँ, कुछ ऐसे बदबख्त भी होंगे जिनकी तरफ अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएंगे, जिनसे अल्लाह का हम कलाम नहीं होंगे, जिनसे अल्लाह बात नहीं करेंगे। अल्लाह तो अपने बंदे से इतना प्यार करते हैं, अल्लाह ने तो अपने नबी की उम्मत से इतना प्यार किया है। और मूसा अलैहिस्सलाम तो तूर पहाड़ पे जाते हैं अपने अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। अल्लाह ने इस उम्मत पर इतना एहसान फरमाया कि हाँ, अगर मेरे महबूब का कोई उम्मती मेरे से हम कलाम होना चाहता है ना, मुझ खुदा से बातें करना चाहता है, मुझ खुदा से अपनी हाजात का सवाल करना चाहता है, दुखड़े बयान करना चाहता है, मुझ खुदा से मीठी मीठी बातें करना चाहता है, मैंने इस उम्मत को अपना कलाम दे दिया है, अपना कलाम दे दिया है जिसे कुरान कहा जाता है। आने जरा कुरान खोल और कह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ओ बंदे पढ़ तो सही, एक एक आयत पढ़ता जा, अपने अल्लाह से बातें भी करता जा और अपने अल्लाह से इन बातों का जवाब भी लेते जा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अर्रहमानिर रहीम, बंदा कहता है, अल्लाह इसके जवाब में कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सिफ्त बयान की है। मालिकी यौमिद्दीन, बंदा ये कहता है या अल्लाह तो क़यामत के दिन का मालिक है,
क़यामत के दिन का बादशाह है। अल्लाह कहते हैं हाँ हाँ, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बंदा मुसल्ले पे खड़े होकर, सफ में खड़े होकर जब सूरह फातिहा की तिलावत करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, मेरा अल्लाह इसके जवाब में कहता है ये बात मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, ये मेरे और तेरे दरमियान मुश्तरक है। आगे बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसकी वजाहत में कहता है अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पे तूने इनाम फरमाया है, उन लोगों का रास्ता ना दिखाना जिन पे तूने गजब किया है। अल्लाह कहते हैं ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे वो ही दूंगा जो तू मांग रहा है। वो तू मांग तो सही। हम तो ऐसे जालिम हैं, अगर इमाम साहब की किरात लंबी हो जाए हम पीछे से अंगड़ाइयां लेने लग जाते हैं, हम पीछे से अंगड़ाइयां लेते, ओए होए बड़ी लंबी सूरत शुरू कर दी, क्या बनेगा? जब अकेले नमाज पढ़ते हैं हमें इतनी तेजी होती है, एक ही सांस में सूरह फातिहा पढ़ जाते हैं। हदीस में यह बात मौजूद है, उलमा ने लिखा है कि हर आयत को एक एक सांस लेकर पढ़ना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। मैं बात कर रहा हूं कि अल्लाह ने इस उम्मत के साथ कितना प्यार किया है। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे जा रहे हैं बात करने, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत को इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। कुरान खोल के पढ़ और अपने अल्लाह से बातें कर, अपने अल्लाह से हम कलाम हो, तेरा रब तेरे से हम कलाम होगा। अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। मैं एक दो गुनाह आपके सामने रख देता हूं जिनकी वजह से अल्लाह कल क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे हमारे अंदर वो बातें हों, वो गुनाह हो। सुनिएगा, मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और कुरान पाक की आयत का मफहूम भी है। जो मैंने कुरान पाक की आयत पिछले जुम्मे भी आपके सामने रखी थी, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन कलीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। चार बातें इस आयत में फरमाई। यश्तरून बिअहदिल्लाह, जो लोग अल्लाह के साथ किए हुए आहद को तोड़ते हैं। अल्लाह के साथ हमने आहद किया है भाई, बोलो, बता दूं क्या किया है? ला इलाहा इल्लल्लाहु, आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। ये अल्लाह से आहद ही तो है, ये अल्लाह से आहद ही तो है। या अल्लाह हमने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के इस्लाम के किले में दाखिल हो गए, इस्लाम के किले में दाखिल हो गए। अब यहां से अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते। बात को समझ रहे? अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते। अब कदम हमें सोच समझ के उठाना पड़ेगा। अल्लाह से आहद किया, अल्लाह तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अल्लाह तेरे दर के सिवा किसी दर पे नहीं झुकेंगे। अल्लाह तुझसे औलाद मांगेंगे, तेरे अलावा किसी से औलाद, बोलो थोड़ा जा, किसी से औलाद, बोलो बोलो थोड़ा सा बोले। ये जुमला मेरे आपके दिल में उतरे, दिल की गहराइयों में जाए। या अल्लाह औलाद को तू ही देता है। बोलो बोलो, औलाद कौन देता है? बोलो बोलो, औलाद कौन देता है? किसी बाबे के कंट्रोल में है, बोलो, किसी चौधरी के कंट्रोल में, किसी दरख्त के खोड़ के अंदर, किसी कब्र की मट्टी में, किसी मट्टी के कंट्रोल में है, या जनाब किसी चौधरी के कंट्रोल में, किसी लीडर के कंट्रोल में, किसी पीर के कंट्रोल में।
ہے किसी के कंट्रोल में? किसके कंट्रोल में? यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन खबीर। बेटियां भी कौन देता है? बोलो बोलो बोलो। बेटे कौन देता है? और बेटे बेटियां दोनों, और कुछ भी ना दे तो कौन है? कौन करने वाला है? ये इख्तियार किस मखलूक में से किसी के पास है? अगर बंदा ये इख्तियार किसी और के बारे में समझ ले, किसी और के बारे में यकीन कर ले, अपने अल्लाह के साथ किए हुए अहद को तोड़ा। बोलो तोड़ा ना भाई। तो जिसने इस अहद को तोड़ा, अल्लाह ऐलान करते बिअहदिल्लाह समनन कलीला उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा। अल्लाह के अहद को भी तोड़ा और झूठी कस्में भी उठाई। अल्लाह के अहद को भी तोड़ रहा है, थोड़ी सी दुनिया की कीमत के बदले में झूठी कस्में भी उठाता है। अल्लाह के नाम की ताजीम इसके दिल में नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा वला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला युकल्लिमुहुमुल्लाह। अल्लाह ऐसे लोगों के साथ कल क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा। अल्लाह क़यामत के दिन इस बंदे की तरफ नज़र शफ़क़त से देखेंगे भी नहीं। वला युज़क्कीहिम। अल्लाह इस बंदे को गुनाहों से पाक भी नहीं करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह इस बंदे को दर्दनाक अज़ाब देंगे। बचो इस बात से, हम अपने आप को बचाएं अल्लाह के साथ वादा खिलाफी करने से। मेरे नबी का फरमान है, जो शख्स झूठी कसम उठाता है, सुन रहे हैं? बोलो कहो जरा सुभान अल्लाह। थोड़े जे बोले, हले थोड़े जे बोले, मैंने जगाया आपको, तवज्जो करना जरा, बड़ी बड़ी अहम हदीस है। जो शख्स झूठी कसम उठाता है और कसम के जरिए से अपने मुसलमान भाई का माल हासिल करना चाहता है, ऐसा हो रहा है? बोलो यारो, ओ यार तस्दीक तो कर दिया करो, तस्दीक या तकजीब तो किया करो। झूठी कस्में उठाई जाती है। बोलो किसी का माल हासिल करने के लिए ना हक तरीके से जनाब अपने मुसलमान भाई का माल हासिल करने के लिए झूठी कस्में उठाई जाती है। ऐसा होता है? सुनो वईद क्या है। कल क़यामत के दिन ये बंदा अपने अल्लाह को इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला इस पर नाराज होंगे। आज हम नमाजें पढ़ते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, कुरान पढ़ते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, रोजा रखा है, बोलो क्यों? कोई दुनियावी गर्ज है? बोलो भाई, किसी से इनाम लेना रोजा रख के? और रोजा तो ऐसी इबादत है, इसमें तो रिया दिखलावा है ही नहीं। तुसी मेरे रोजे की तस्दीक कर सकते हो? बोलो यार, मैं तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। मैं आपके रोजे की तस्दीक नहीं कर सकता, आप मेरे रोजे की तस्दीक किसको पता है? किसको पता है? बोलो यारो, किसको पता है? अल्लाह को पता है ना कि भाई रोजा रखा हुआ है, तो रजा किसकी? रोजा रखा अल्लाह को राजी करने के लिए, नमाज पढ़ता है अल्लाह को राजी करने के लिए, जिक्र अज़कार करता है अल्लाह को राजी करने के लिए, हाँ सदका खैरात करता है अल्लाह को राजी करने के लिए, सखावत वाली सिफ्त अपनाई हुई है अल्लाह को राजी करने के लिए, अपनी नजर की हिफाजत कर रहा है ताकि मुझसे मेरा अल्लाह हाय 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 हाय। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मर्ज आ गया अंदर, झूठी कस्में उठा बैठा, किसी का माल ना हक तरीके से जनाब गसब कर लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह इस पर नाराज होंगे। आप जानते हैं अल्लाह की नाराजगी का नतीजा क्या है?
अच्छा, एक और बात भी मेरे ज़हन में आ गई। आजकल चूंकि जैसे नेकियों का सीजन है ना, ऐसे तजारत का भी सीजन है। क्यों जी? फल शल, फल फ्रूट कल दा महंगा हो गया कि नहीं? बोलो यारो। मैं कहा तुसी रहे फ्रूट नहीं, इफ्तारी नहीं की। चलो कोई गल नहीं, अल्लाह सारा नू खिलाए, अल्लाह जन्नत के फल खिलाए। हाय हाय हाय, अल्लाह जन्नत के फल खिला दे। हैं यार, हैरानगी की बात है, काफिर हुकूमतें मुसलमानों को रिलीफ देती हैं। मुसलमानों के रोजे आ गए, इनको रिलीफ दे दो, फ्रूट सस्ता, राशन सस्ता, सब कुछ सस्ता है। मुसलमान क्या करता है? ओए सीजन आ गया, चक दो कम नो। लोगों ने खरीदना मजबूरी है, खरीदना मजबूरी। अल्लाह ने बरकत डाल ले रखी है रमजान में। तुसी जो कुछ शाम ਨੂੰ दस्तरखान ते सजांदे हो इफ्तारी टाइम, रमजान तो बाद इधर सजा के दिखाओ। क्यों भाई? सजा सकते? खजूर पड़ी है, पकौड़ा पड़ा है, समोसा पड़ा है, रोल पड़े हैं जनाब, फ्रूट पड़ा हुआ है, सेब 500 रुपए किलो दस्तरखान पे है। क्यों भाई? है 500 रुपए किलो दस्तरखान पे सेब पड़ा है, 500-600 रुपए किलो खजूर पड़ी हुई है। रमजान के बाद जरा ऐसे दस्तरखान सजा के देखना, नजर आता है अल्लाह रमजान के महीने में बरकत नाजिल फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं ये कहने लगा था कि सौदा हम बेचते हैं और झूठी कस्में उठाते हैं। बोलो होंदी है कि नहीं? और कई लोगों को आदत होती है ऐनी खाम खा कसम चुक लेना, कोई बात होती भी नहीं। अल्लाह की कसम मेरी जेब के बाद 10 रुपये यार, वो 10 रुपये काट के दे दे, कसम क्यों चुक रहे? अल्लाह की कसम मैं कुछ नहीं खाता, खाता हो गया तो झूठा हो गया, कसम झूठी हो गई। ये बंदा हर बात पे कसम क्यों उठाता है? सौदा बेचने के लिए कसम क्यों उठाता है? क्योंकि इसके दिल में अल्लाह के नाम की अजमत नहीं है। कसम ना उठाया करो, हत्तुल इम्कान हलफ ना उठाया करो। आज इस कौम का अलमिया ये है, ये कुरान पढ़ने के लिए नहीं रहा। देख रहे मेरी तरफ? ये पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए नहीं रहा। बहुत कम लोग इसकी तिलावत करते हैं। ये कुरान सिर्फ ऐसे सर पे रखकर उठाने के लिए रह गया। नहीं हो रहा? बोलो यारो, क्या नहीं हो रहा? जो सर पे उठा के कहता है मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसकी उस बात में एक लफ्ज भी सच्चा नहीं होता। मरना नहीं है और कब्र में नहीं जाना, अपने अल्लाह से सामना नहीं करना, क्या अपने अल्लाह से हम कलामी का शरफ नहीं हासिल करना, अपने अल्लाह की नजर शफकत नहीं लेना चाहते। आज हम ये कहते हैं जब मरेंगे तो फिर देखेंगे। हाय हाय, यहां सदा कोई नहीं रहने वाला। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज से 100 साल पहले यहां कोई और बैठा हुआ था और आज से 100 साल के बाद यहां कोई और बैठा होगा। हम में से कोई भी नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा हूं, झूठी कसम उठाने वाले को भी अल्लाह कल क़यामत के दिन नजर रहमत से नहीं देखेंगे। इससे हम कलाम नहीं होंगे। यह झूठी कस्में क्यों उठाता है? इसलिए कि इसके दिल में अल्लाह के नाम का एहतराम, अल्लाह के नाम की अहमियत नहीं। और जिनके दिलों में अल्लाह के नाम का एहतराम था, अल्लाह ने उन लोगों के नाम को आज भी रूए ज़मीन पे जिंदा रखा हुआ है। बिशर हाफी का नाम जानते हैं? बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के रहने वाले थे। आज जब हमारे सामने उनका नाम आता है,
दिल में सुकून दौड़ जाता है, इत्मीनान नाज़िल हो जाता है, सकीना तारी हो जाती है, मुंह मिठास से भर जाता है। आखिर ये नबी थोड़ी थे, नशई थे, नशई, नशा करते थे। हाय हाय, नशा करके घर से निकले। लोगों और झूठी कस्में उठाने वालों, तुम्हारे नजदीक अल्लाह के नाम की अजमत नहीं, अल्लाह के नाम की ताजीम नहीं, इसीलिए बार बार अपनी जबान से कसम उठाते हो। बिशरे हाफी घर से निकले, नशे में है, नशे में। आप जानते हैं कि नशे वाले बंदे को कोई बात सूझती, बोलो यारो, उसकी अकल भी ठिकाने नहीं होती। नशे आदमी को मां बहन बेटी की तमीज नहीं होती, नशे की हालत में है। नशा करके घर से बाहर निकले, नाफरमान है अल्लाह के नाफरमान है। ज़ाहिर नशा भी गुनाह कबीरा है। नशा करके गाय से बाहर निकले हैं। चलते चलते रास्ते में एक पर्ची पड़ी, देखी, हाय, पर्ची पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको उठाया, सीने से लगाया और चूमा और खुशबू लगाई। खुशबू लगा के उसको ऊंचा रखा और कहते हैं बिशरे हाफी, तेरा मकाम ये है। अल्लाह के नाम को उठाया ना कि तेरा मकाम ये है, तेरा मकाम ये नहीं है। खुशबू भी लगाई, चूमा भी है, सीने से लगाया है, अकीदत से ऊपर रखा। रात को ख्वाब आती है, ख्वाब में आवाज आती है, बिशर तूने हमारे नाम की लाज रखी, तूने हमारे नाम को बुलंद किया, मेरे नाम को खुशबू लगाकर ऊंची जगह पे रखा, मैं खुदा तेरे नाम को पूरी दुनिया में बुलंद कर दूंगा। और आज बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह का हम नाम बड़े प्यार से लेते हैं। यह है अल्लाह के नाम की ताजीम। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ रहते थे, अक्सर बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके पास बैठते थे और कभी कभी कहा करते थे, बिशर मुझे मेरे अल्लाह की बातें सुना, मुझे मेरे अल्लाह की, बोलो, मुझे मेरे अल्लाह की बातें सुना। अल्लाह की बातें तो वही सुनता है जो अल्लाह का आशिक होता है। अल्लाह की बात उसी को अच्छी लगती है जिसके दिल में अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की जात का एहतराम है, अल्लाह को अपना खालिक और मालिक जानता है। जिसके दिल में कदर नहीं, उसे 100 बार क्या, 1000 बार क्या, लाख मर्तबा भी कहते रहो, आ जाओ भाई अल्लाह की बात सुन लो, आ जाओ अल्लाह की बात सुन लो, आ जाओ भाई अल्लाह की बात हो रही है, वो सुनने के लिए तैयार। अल्लाह हमारे दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत पैदा कर दे। खैर, मैं अर्ज कर रहा हूं, झूठी कसम उठाने वाले को अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखेंगे, तौबा कर लो। है अल्लाह अपने साथ किए हुए आहद, उसको अगर तोड़ने वाला कोई बंदा है, अल्लाह उसके साथ भी हम कलाम नहीं होंगे, तौबा कर ले। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना के बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद की रिवायत है, फरमाया, सलासुन ला यदखुलुल जन्नता वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामह। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह उनको कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल भी नहीं करेंगे और अल्लाह उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। बता दूं, नंबर 1, अल-आक़ु बिवालिदैहि, अल-आक़ु बिवालिदैहि, अपने माँ बाप का नाफरमान। इस मुआशरे में ये गुनाह पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? आए हाय, जब माँ बाप का साया सर से उठता है फिर पता चलता है,
پھر پتہ چلتا ہے ان کی قدر کیا تھی. جن کی دنیا سے جا چکے ان سے پوچھو ماں باپ کے احترام اور عظمت اور برکت کیا چیز ہے. میں عام طور پہ ایک دعا کیا کرتا ہوں، اللہ ہمیں ہمارے والدین کی وجود کی برکات سے کبھی بھی محروم نہ فرما. والدین کے نافرمان اللہ اس کو جنت میں بھی داخل نہیں کریں گے اور اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے. ہائے ہائے والمرأة المترجلہ المتشبہۃ بالرجال. ذرا توجہ سے سننا بات کو بھائی، توجہ سے سننا بھائی. ایسی عورت جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے اور ایسا مرد جو عورت بننے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ گناہ پایا جاتا ہے، بولو یارو، پایا جاتا ہے. میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے آپ کے نبی نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو مرد اپنے اندر عورتوں کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتیں مرد کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ گناہ آج ہمارے دور میں کثرت سے پایا جاتا ہے. نوجوان بہت کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. اپنے اللہ کی طرف لوٹو بھائیو. ہاں، لباس اپنا مصنون بناؤ، اپنی وضاقتہ مصنون بناؤ، عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرو. عورتوں کو بھی جا کے بات بتانی چاہیے، مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں. یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے. اللہ ان لوگوں کی طرف کل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا دیوس آدمی یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. دیوس کسے کہا جاتا ہے؟ دیوس اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو اس کے گھر میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. یہ میں نے اس لیے شروع کیا موضوع کہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان سے پہلے بھی ہم نے بچایا اپنے آپ کو، رمضان میں بھی اگر ہو چکا ہے توبہ کر لیں، عباد الرحمن کی صفات پیدا کر لیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مریں گے، مرتے وقت بھی خوشخبریاں ہوں گی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، نکل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے اور تو اپنے رب پہ راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرمائے اے میرے بندے تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. واقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.